अच्छा जी, हम लास्ट टाइम नैनो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे एंड वी almostly uh, talked about the synthesis, different types of the synthesis of the nano materials or nano uh, composites. So there are different methods by which you can prepare nanomaterials. One methods they are classified as physical methods. The other one were chemical methods. Uh, by medium of synthesis, then you can also take the nanochemistry, nano compounds. You can prepare them by different media using different media like gas phase synthesis, liquid phase synthesis, solid phase synthesis. So gas phase synthesis में हमने पढ़ा था कि there are gaseous molecules which are reacting with each other to produce the nanoparticles. Then the liquid phase synthesis में हमने पढ़ा था कि there are इसमें हमने क्या करना है precipitation करनी है of the nano compounds. इसमें different methods हैं, different routes हैं जिसको follow किया जाता है. One is chemical precipitation, the second one is hydrothermal synthesis. The third one is sol gel synthesis. And the fourth one is microemulsion or synthesis in reverse mycel. केमिकल प्रेसिपिटेशन हमने पढ़ा था कि इसमें हम क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं, न्यूक्लिएशन करते हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो आपके पास प्रेसिपिटेट हो जाता है एज अ नैनो मटेरियल. सो दिस इज द फ्लो शीट डायग्राम. देन द हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें हम क्या करते हैं कि metal salts are gels are treated at high temperature and pressure. The size of the particles are controlled different parameters like pH, concentration, solvent, and condition process conditions. So इसमें हम ये डिफरेंट तरीकों से, लेकिन इसमें सिर्फ ज़रूरी क्या चीज़ है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये दो चीज़ें आपने ज़्यादा देनी है तो इससे आपको नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स बन जाएंगे. सॉल्ट जेल सिंथेसिस, इसमें हम सॉल बनाते हैं एंड देन दैट सॉल इज converted to gel to get the nanomaterials. इसमें like mechanism क्या है, like alkoxides are alcohols. Alcohols are esters जो भी हैं, they are reacted with water to produce these partially hydrated species. These partially hydrated species, they are then converted to uh, मतलब इसमें क्या है, these MOM type of species are produced. मतलब इसमें डिहाइड्रेशन के बाद या डी अल्कोहलेशन के बाद आपको एक नई स्पीशी बन जाती है जिसको हम सोल कहते हैं, ठीक है. एंड दिस सोल इज then leading to the formation of insoluble three-dimensional network which is called gel. तो इस मेथड से भी आपको नैनो मटेरियल्स बन के सामने बन के आ जाते हैं. So the fourth type of the method was microemulsions. इसमें हम क्या करते हैं, टू डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड लेते हैं और इनमें हम सरफेक्टेंट डालते हैं. तो सरफेक्टेंट क्या करता है, इनका जो सरफेस टेंशन है वो कम कर देता है, तो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर मिसिबिलिटी जो है वो अलाउ कर देता है. एंड दिस प्रोड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स. नैनो ऑक्साइड से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. नाउ द थर्ड मेथड, हम गैस फेज सिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, लिक्विड फेज सिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं एंड देयर टाइप्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं. टुडे आई विल बी टेकिंग सॉलिड फेज सिंथेसिस. सॉलिड फेज सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें सॉलिड्स लेते हैं, ठीक है, और उनसे हम नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं और नैनो मटेरियल्स बनाते हैं. सो नैनो पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द nanoparticles are produced uh, nanoparticles are formed directly from solid or semi-solid or viscous liquids. It belongs to top-down approach. मतलब ये भी
एक बहुत ज़्यादा यूजफुल अप्रोच है जिससे हम नैनो पार्टिकल और नैनो मटेरियल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, the first and very important process through which we can synthesize nanoparticles of materials, that is called mechanical milling method. Mechanical milling method में क्या होता है, mechanical forces involved in high energy particles are used to bulk mechanical forces are used to break bulk material down to bring it to nano levels. मतलब आपके पास एक ऐसा बड़ा सा सॉलिड मटेरियल होता है, सो यू आर ब्रेकिंग इट बाय मिलिंग मेथड, मतलब एक तरीके से आप उसको तोड़ रहे होते हैं एंड अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड टू द नैनो पार्टिकल्स, नैनो लेवल तक चला जाता है। ठीक है, मैकेनिकल मिलिंग जो है ज़्यादातर ये मशीनों से ही किया जाता है, लेकिन हाथों से नहीं किया जाता। इसमें ज़्यादातर मशीन्स जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होता है जिससे हम ये नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। Mechanochemical method involves the physical reduction in the material size as well as the milling energy is used to initiate the chemical reaction between the materials that are being milled. अब एक तरीके से आप साइज रिडक्शन कर रहे होते हैं, जिस तरह हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग जस्ट एग्जांपल, मतलब इस तरह मैं आपको मिलिंग का प्रोसेस सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। घर में जो हम ये लेते हैं पिस्टल एंड मोटर, जो लंगरी होती है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें, मसाले या डिफरेंट चीज़ें जो है वो उसको कूट के आप पाउडर बना देते हैं। ठीक है, इसको मिलिंग प्रोसेस एक तरीके से कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मिलिंग प्रोसेस इंडस्ट्रियल लेवल या सिंथेटिक लेवल भी करते हैं। ठीक है, सो दिस मैकेनिकल मिलिंग में सिर्फ हम ये मैकेनिकल फोर्स यूज़ करते हैं और इसको हम तोड़ रहे होते हैं, मटेरियल का साइज रिड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैकेनो केमिकल मेथड है इसमें आप साइज भी रिड्यूस करते हैं एट अ टाइम, और दूसरा आप जब साइज रिड्यूस कर देते हैं तो एक वक्त आ जाता है कि इनके दो दरमियान रिएक्शन शुरू हो जाता है, एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है कि इनके दरमियान रिएक्शन शुरू हो जाता है, एंड दैट रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। सो properties of the nanoparticles. Surface area. Nanoparticles or nanomaterials, they have large surface area. ठीक है, इनके साइज तो छोटे होते हैं लेकिन सरफेस एरिया इनका बहुत ज़्यादा होता है। रिएक्टिविटी इनकी हाई ड्यू टू द अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स ऑन देयर प्रिस्टीन सरफेसेस। ज़्यादातर नैनो मटेरियल्स जो हैं ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे बकीबाल्स हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव साइट्स होते हैं इस पे। Basic properties of material changes. Their size approaches the nanoscale. Percentage of atoms at the surface of material becomes significant. Example: gold nanoparticles melt at lower temperature 300 degrees centigrade for 2.5 nanometer size. Then the gold slabs, which is melting at 1064 डिग्री सेंटीग्रेड, 1064 डिग्री सेंटीग्रेड पे गोल्ड जो है ये मेल्ट होता है। लेकिन जब गोल्ड के आप नैनो पार्टिकल बनाते हैं तो इसके नैनो पार्टिकल्स जब आप 2.5 नैनोमीटर तक पहुंचा देते हैं तो ये गोल्ड जो है ये फिर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज भी नैनो पार्टिकल्स के बनने से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये भी, इनमें भी चेंजेस आती हैं। ठीक है, और ये चेंजेस क्यों आती हैं? बिकॉज परसेंटेज ऑफ द एटम्स एट द सरफेस ऑफ मटेरियल बिकम सिग्निफिकेंट। जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो एटम की परसेंटेजेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। सरफेस एरिया तो बढ़ जाता है ना, नैनो पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है देन द नॉर्मल मटेरियल। तो इस वजह से इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये चेंज होना शुरू हो जाती है। सर स्टूडेंट्स अलाउ जी सर स्टूडेंट्स अलाउ के प्लीज।
मैं कर रहा हूँ ना, तो आपको कहने की क्या जरूरत है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, optical properties often possess unexpected optical properties as they are small enough to confine their electrons and produce quantum effects. Optical properties क्या होती हैं, मतलब for example when you are exposing it to the light, certain energies of light they are being converted to high energies, or they are converted to lower energy, or मतलब कभी कभार ऐसे होता है कि हम कोई भी लाइट होती है उसकी वेवलेंथ या एनर्जी जो है बढ़ जाती है, या अगर दूसरी जो लाइट है एनर्जी कम हो जाती है वेवलेंथ बढ़ जाता है। ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। दूसरा जो है, अब लाइट जो है उसको उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है लेकिन एनर्जी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि यू आर कन्वर्टिंग द मटेरियल, जो आपका नॉर्मल मटेरियल है वो एक जैसा बिहेव करता है लेकिन उसके नैनो पार्टिकल डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। वो फिर लाइट को उसके साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है वो डिफरेंट हो जाता है, वेरिएशन आती है उसमें। सो दिस वेरिएशन कम्स, ये जो वेरिएशन आ रही है दिस इज बिकॉज ऑफ द नैनो पार्टिकल प्रोडक्शन। सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत ज़्यादा इसका एक रोल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स अपीयर डीप रेड टू ब्लैक इन सोल्यूशन। जब गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स आप बनाते हैं, सो ये आपको जब आप इसको देखेंगे तो या तो ये रेड नजर आएंगे या ब्लैक नजर आएंगे आपको सोल्यूशन में। ठीक है। और ऑर्डिनरी गोल्ड आपको कैसा नजर आता है, दैट इज ऑलमोस्टली, इसको तो हम गोल्डन कलर ही कहते हैं ना, येलोविश शाइनी कलर होता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ, इसमें जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बन गई तो इसका इसकी प्रॉपर्टीज में इतना चेंज आ गया। ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी चेंज जो है ये किस वजह से आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द conversion of the light into higher wavelength or lower wavelength. Sometimes it is higher, sometimes. एक्सक्यूज मी सर, Hmm. सर ये प्रिस्टाइन सरफेस का क्या मतलब है? ये रिएक्टिविटी में हाई ड्यू टू द अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स ऑन देयर प्रिस्टाइन सरफेस। प्रिस्टाइन सरफेस का सर क्या मतलब है? क्रिस्टाइन सर्फेसिस का मतलब ये होता है जो एक्सपोज्ड होता है, मतलब जो रिएक्शन के लिए या किसी भी काम के लिए एक्सपोज है। यस थैंक यू। टेक्निक्स जो हम इस नैनो पार्टिकल्स को, जिन टेक्निक से हम करेक्टराइज करते हैं, सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द करेक्टराइजेशन ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। वन ऑफ देम इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी जो है इसको यूज किया जाता है, इसको एसटीएम टेक्निक कहते हैं। इससे हम नैनो पार्टिकल्स को देख सकते हैं कि उसका साइज कितना है, ठीक है, और कितने किस शेप में। दूसरा जो है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, एएफएम उसको कहते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी एडवांस टेक्निक। और ये जो डिफरेंट टेक्निक्स है ये सिर्फ इसलिए हम यूज कर रहे हैं, मतलब कभी कभार आपका जो एक टेक्निक होता है वो हम एक साइज की लेवल तक हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरा टेक्निक फिर उसके लिए यूजफुल नहीं होता। मतलब अब आप किसी खास साइज के लिए एक टेक्निक यूज करेंगे, लेकिन फिर जब आपका साइज, वो जो पार्टिकल या मटेरियल होता है उसका साइज और भी कम हो जाता है, सो यू कैन नॉट सी इट टू थ्रू दैट टेक्निक, सो यू हैव टू यूज अनदर टेक्निक। सो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो है ये वन ऑफ द टेक्निक, वन ऑफ द एडवांस टेक्निक जो तकरीबन बहुत ज़्यादा कम साइजेस के लिए यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू सी देम। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM, दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक टेक्निक्स। अगर कोई चीज़ भी नहीं है तो SEM से हम इसको देखते हैं और इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि नैनो पार्टिकल का जो नैनो मटेरियल है, नैनो पार्टिकल है, इसका साइज कितना है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, TEM। अब ये देखिए STM, AFM और TEM ये एडवांस टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये मतलब बहुत हाई लेवल पे हम यूज़ करते हैं। SEM जो है ये बेसिक टेक्निक है, ये आप लेते हैं, ये हर तकरीबन हर मटेरियल के यहाँ यूज़ करते हैं, चाहे वो नैनो पार्टिकल हो या ना हो। लेकिन नैनो को आप सिर्फ साइज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, यू कैन नॉट
see them clearly using SEM. So you, in order to see them clearly, you have to use TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एसईएम के बाद ये टीएम आती है। टीएम और एसईएम में सिर्फ फर्क ये है कि इसमें ज्यादा क्लियरली आपको पार्टिकल के साइजेस भी नजर आते हैं और पार्टिकल्स भी क्लियरली नजर आते हैं। दूसरा, ये कलर्ड पिक्चर्स आपको देता है। एक्सरे डायफ्रैक्शन, XRD, दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेसिक टेक्निक्स। ये भी हम दो तरीकों से लेते हैं, लेकिन जो मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है दैट इज पाउडर XRD। ठीक है, तो पाउडर XRD से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास मटेरियल में कौन कौन से कंपोजिशन है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने कितने परसेंटेजेस में हैं। सो यू हैव टू, इसमें आप देख नहीं सकते बल्कि आप सिर्फ उससे कंपोजिशन का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेसिक टेक्निक टू कैरेक्टराइज द नैनो पार्टिकल्स और नैनो मटेरियल्स। तो इन सब टेक्निक्स में STM, AFM, TEM, these are advanced techniques. SEM, XRD, these are the basic techniques. अब जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ये नैनो मटेरियल्स और नैनो पार्टिकल्स, दे आर यूज्ड इन मेनी एरियाज। ठीक है, और ये बढ़ते जा रहे हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया विच इज in which these nanoparticles are being applied, there are medicines। ठीक है, आजकल मेडिसिन में नैनो पार्टिकल्स का बहुत रोल है। पहले जो आप मेडिसिन यूज कर रहे थे और फिर उस मेडिसिन में फिर एडवांसमेंट आती है और फिर उसको हम यूज करते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक डिजीज, तो उसकी प्रॉपर्टी तकरीबन बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र आता है उसमें, लेकिन साइज रिडक्शन के बाद। ठीक है, तो मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा रोल है नैनो पार्टिकल्स का। पार्टिकुलरली ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है कि ये ड्रग्स को बहुत सेफली जो एरिया ऑफ एक्शन होता है उधर ये लेके उधर छोड़ के फिर उधर जो एक्टिविटी होती है वो ड्रग कर लेता है और उधर ही ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जो डायबिटिस के पेशेंट्स होते हैं, दे आर कंज्यूमिंग दीज इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये जब हम लेते हैं तो इंसुलिन इटसेल्फ, दिस इज़ अ प्रोटीन, तो ये क्या हो जाता है, ये जब स्टमक से गुजरता है तो ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो पेंक्रियाज तक पहुंचते पहुंचते ये तकरीबन डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो इंसुलिन को अब हम सेफली अगर डिलीवर करना चाहते हैं कि पेंक्रियाज तक पहुंच जाए और अपना एक्शन करे, अपना काम करे, तो उसको हमने क्या करना है, इसको हमने इनकेप्सुलेट करना है इन नैनो मटेरियल्स और नैनो पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू डिलीवर इट टू द स्पेसिफिक साइट्स ऑफ एक्शन। सो इस तरीके से बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं जो ड्रग जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है उधर नहीं पहुँचता, बल्कि वो उससे पहले पहले ही ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो पहले पहले ख़त्म हो जाते हैं, तो उनका एक्शन जो होता है वो कम नज़र आता है। हम कहते हैं कि मैं तो दवाई ले रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा, एक्चुअली दैट इज़ बीइंग डाइजेस्टेड बिफोर इट्स एक्टिव साइट्स। सिमिलरली डायग्नोसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारे डायग्नोस्टिक instruments जो है, they are using nano materials or nano particles for the diagnosis of the diseases or anything। ठीक है, ड्रग डिलीवरी ये पहले मैं बता चुका हूँ। टिश्यू इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एरिया है जिसमें ये यूज़ होता है आजकल, और बहुत ज़्यादा डीएनए की टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एनवायरनमेंट में भी इसका एक रोल है, या यू कैन यूज़ इट इन एनवायरनमेंट एज वेल टू क्लीन इट। कैटालिसिस में इसका रोल तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है कैटालिटिकली, क्योंकि कैटालिसिस में एक चीज़ ज़रूरी होती है, दैट इज़ द सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया कैटलिस्ट का ज़्यादा होता है, सो दैट इज़ एक्टिव। तो नैनो पार्टिकल्स का तो सरफेस एरिया आम मटेरियल से ज़्यादा होता है, सो इट विल बी यूजफुल इन कैटालिसिस, और पर्टिकुलरली हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में इसका यूज़ फिर ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जो ट्रेडिशनल कैटालिसिस के मेथड्स थे उसको नैनो पार्टिकल्स से रिप्लेस किया जा रहा है और आपको वो मिल रहे हैं। ठीक है, देन फिल्ट्रेशन, एनर्जी, कंप्यूटर्स, इन चीज़ों में भी यू आर सीइंग दैट द टेक्नोलॉजी इज स्क्वीजिंग
to handy sets or handy computers is ये जो speeds or and the size reduction is occurring because of the nano technologies. एरोस्पेस में भी इस तरीके से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसकी बढ़ जाती हैं. सो यू कैन सी दैट एरोस्पेस मटेरियल्स जो बन रही हैं तो उसकी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं. रिफाइनरीज में जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है या और रिफाइनरीज है लाइक आयरन की रिफाइनरी है, ठीक है, लोहे वाली और इस तरह की गोल्ड वाली, तो इसमें भी यूज़ हो रहे हैं. व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ हो रहे हैं आजकल. बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें नैनो केमिस्ट्री जो है बहुत एक्टिवली यूज़ किए जा रही है. फूड पैकेजिंग, ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स आप लोगों ने देख लिया एग्जांपल, मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड जो है नॉर्मली दैट इज़ येलोइश, जिसको हम गोल्डन कलर कहते हैं, और जब इसका नैनो पार्टिकल बन जाता है तो दैट इज़ रेड और ब्लैक इन कलर. तो ऑप्टिक्स में भी इसका यूज़ है, टेक्सटाइल्स में भी इसका यूज़ है, कॉस्मेटिक्स में भी ये यूज़फुल होता है. So there are a lot of areas which is being covered by the nanoparticles or nanotechnology. ठीक है. If you people have any question today regarding today's lecture, you may ask. जी. और ये जो मटेरियल है ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है. ये आप लोग को इस नैनो केमिस्ट्री के वो अपलोड कर देंगे. देन वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर. वी आर लेफ्ट विद वन और टू चैप्टर्स. वो शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स हैं वो Okay, हम sir. स्टार्ट कर देंगे. जी. Sir, the सर gold the gold color must change kideshi sir. The golden color must change kideshi bal color talo ishu the gold. Yes, when it is being converted to nanoparticles.